All right, everyone. First of all, welcome to Mindspace School of Mathematics. शशांक गुप्ता दिस साइड. आज हम जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 के फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 2 के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. कल की वीडियो में एक्सरसाइज 1 के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आई होप आपने एंजॉय तो किया होगा. ऐसे मैथ्स को जो लोग पसंद करते हैं वो उसको एंजॉय भी करते हैं और उसमें जी जान भी झोंकते हैं. आप भी झोंक रहे होंगे. इसकी बात करते हैं. एक्सरसाइज 2 से मैंने पहला क्वेश्चन जो सेलेक्ट करा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. fx एक फंक्शन दिया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शन पार्ट. पीरियड की बात कर रहे हैं वो दे आर टेक्निकली स्पीकिंग f of x plus t is fx where t is a fixed positive number. तो इनमें से which value t can have. Got it? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. चलो शुरू करते हैं. fx एक फंक्शन दिया हुआ है. fx is given to me as 0.1 into 3 raised to the power greatest integer x and this whole fractional part of x. Got it? Now they are saying कि f of x plus t fx है where x is more than 0 and t is a fixed positive number, then the least value of t is. देखो t की least value की बात वो कर रहे हैं. ठीक है, ऑप्शन 2, 4, 6 एक none of these भी है. तो somewhere I have to start. मुझे बस एक इसमें फील है कि शायद x t इक्वल टू 4 पे कुछ काम बन जाए. क्यों? क्योंकि 3 रेज़ टू द पावर जो अगर मैं x प्लस 4 करूंगा ना, सो 3 रेज़ टू द पावर 4 विल गिव मी 81 और 81 वाइल मल्टीप्लाइंग विद 0.1 विल गिव यू 8.1 जो 2 और 6 में नहीं होगा. सो नाउ इफ आई डू f of x plus 4 fractional part 0.1 3 raised to the power greatest integer x plus 4. Got it? So this can be written as 0.1 3 raised to the power x greatest integer plus 4, which is fractional part 0.1 3 raised to the power 4 को we can write separately into 3 raised to the power greatest integer of x. Understood? Now it will be 0.1 3 raised to the power 81 into 3 raised to the power greatest integer x. So that would be fractional part of 8.1 into 3 raised to the power greatest integer of x, which is 8 into 3 raised to the power greatest integer x plus 0.1 into 3 raised to the power greatest integer x. Now this quantity is certainly an integer, and you know fractional part of x plus some integer z is also fractional part of x only. Yes or no? So this is directly fractional part of 0.1 into 3 raised to the power greatest integer x, which is your fx. And this thing will not happen in any other value of t if you assume. Yes, at 8 it will again happen because 3 higher powers are repeating with a periodicity of last digit is repeating with a periodicity of 4. So in that case this answer will be 4. Understood? Very good question, very refined, and the great use of fractional part and greatest integer function all together. Well, अगला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है. ये क्वेश्चन दिमाग के घोड़े दौड़ा देगा. सच बताऊं तो मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए भी और समझने के बाद दोबारा करने के लिए भी. एक फंक्शन gx दिया हुआ है जिसकी डोमेन का आइडिया नहीं है और इसमें log 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 repeating n number of times and then it is under root of 2x minus 3 upon 1 minus x plus 3. Now minimum value of n, how many times log should repeat so that gx become onto. So gx become onto का मतलब हुआ कि इसकी रेंज को मैं माइनस r टू r कर पाऊं. समझने की कोशिश करना और 2 बार 3 बार अपने आप से सोचना. आपके सोचने के बिना काम नहीं बनेगा. फाइन, लेट्स डू इट. चलो वन बाय वन शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट ऑफ 2x minus 3 upon 1 minus x, this is more than or equal to 0. Got it?
So under root of 2x minus 3 upon 1 minus x plus 3 more than or equals to 3. एक चीज क्लियर हुई. अब अगर मैं इसका वन टाइम लॉग लेता हूं, सो ln ऑफ अंडर रूट 2x minus 3 upon 1 minus x plus 3, it will be more than or equals to ln 3 less than infinite. Correct है? More than or equals to ln 3 less than infinite. Now ln 3 जो है ना, this ln 3 is somewhere between 1 और 2, because बेस जो है लॉग का दैट इज 2 पॉइंट ई जो विच इज 2.72 समवेयर बिटवीन 2.73, बिकॉज जो बेस है लॉग का दैट इज 2.7 अप्रॉक्स है वो ई. नाउ इफ आई टेक लॉग वंस अगेन, सो कैन आई से इट इज मोर देन 1. नाउ इफ आई टेक लॉग वंस अगेन, सो ln of under root of 2x minus 3 upon 1 minus x plus 3, this value is more than 0. बट ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये जीरो से स्लाइटली ग्रेटर है. तो इवन बेटर आई शुड राइट इट, चलो इट इज मोर देन जीरो. नाउ इफ यू टेक अनदर लॉग, तो ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x minus 3 upon 1 minus x plus 3, this value is greater than माइनस इनफाइनाइट, बट ये किसी t से छोटी होगी. मतलब दिस t विल बी लेस देन 0 और t कोई नंबर होगा. गेटिंग माई पॉइंट? अब जब इसका 4 टाइम लॉग लेंगे तो इसकी जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बनेगी. ये थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्वेश्चन में. 3 बार लॉग लेने से ये इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट नहीं जा रही है, इसकी रेंज कोई फाइनाइट नंबर जाएगी जो कि माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा. गेटिंग माई पॉइंट? तो इन दैट केस अब अगर मैं एक 4th टाइम लॉग लूंगा, तो ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x minus 3 upon 1 minus x plus 3, now it will be actually more than minus infinite and less than infinite. अंडरस्टूड? क्योंकि ये t जो है ना ये जीरो से छोटा होगा, तो अब यहाँ पे जीरो विल बी ए पार्ट ऑफ रेंज. अब जब मैं दोबारा से इसका लॉग लूंगा तो ये निगेटिव आना शुरू होगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा. गॉट इट? सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सो दैट मींस दिस n शुड बी इक्वल टू 4. देखो दो क्वेश्चन किए, दोनों का आंसर 4 आया. दैट इज मैटर ऑफ चांस ओनली. उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 23 को उठाते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगेन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट का बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है. ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लोगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. फिर भी लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इफ यू कुड नॉट कैच इट. तो एक चीज तो इसमें बड़ी एविडेंट है, यू कैन डायरेक्टली राइट इट fractional part of x repeating 100 times. Am I clear? fx is fractional part of x repeating 100 times. Now the question is very simple. Greatest integer of f1 plus greatest integer of f root 2 plus greatest integer of f of root 3 plus greatest integer of f of 2 plus greatest integer of f of root 5. All right. Now f1 will be what? f1 will be 100 times fractional part of 1, which is 0. f2 will be greatest integer of 100 times fractional part of root 2. f of root 3, greatest integer of 100 times fractional part of root 3. f of 2 will be 0 and f of root 5 will be 100 times fractional part of root 5 and greatest integer of this. Now this will be fractional part of root 2 will be 100 times root 2 minus 1 greatest integer, 100 times root 3 minus 1 greatest integer, 100 times
root 5 minus 2 greatest integer. Understood? Now it is 100 root 2 greatest integer minus 100. 100 root 3 greatest integer minus 100. 100 root 5 greatest integer minus 200. There we go. Now root 2 is 1.41. 1.414. So it is 141 minus 100, 41 plus 1.73. 1.73 means 173 minus 100. So it will be 73 plus 100 root 5. Root 5 is around 2.23. 2.23 to 223. So it will be 23. All right. So it is 41 plus 73 plus 23. That is 137. So this is your answer. अब सोचो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे मुश्किल चीज क्या है? इसमें सबसे मुश्किल चीज है कि हम किस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को परसीव करते हैं, है ना? ये इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट की. इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है कि ये इंटीजर है, ये देखने में भयानक बना दिया बट ये इंटीजर है तो ये इसका वैसी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. देन f of root 2 के बारे में सोचना, that is 100 times fractional part of root 2 which is root 2 minus 1, this is root 3 minus 1, this is root 5 minus 2. Otherwise it's an okay question. All right, चलो exercise 2 functions question number 24. Fine. f of 3 1 दिया हुआ है, फंक्शन r plus 2 r है और एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है. देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है. यहाँ क्या होता है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में एक अलग अलग तरह की अप्रोच हो सकती है. गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको आप जरा ध्यान से देखो. दिस क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट अप्रोच, ए डिफरेंट फ्रॉम सो मेनी अदर क्वेश्चंस. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स हैव अ लुक. फॉर a बिलोंग्स टू r प्लस एक फंक्शनल इक्वेशन दी है fx इंटू एफ वाई प्लस एफ ऑफ 3 बाई एक्स f of 3 by y is equals to 2 times f of xy. अब अलग अलग वैल्यूज ऑफ x और y डाल डाल के हमें कुछ ना कुछ इससे एक्सट्रैक्ट करना है. ऑलराइट, चलो फर्स्ट केस बनाते हैं. पहले x और y को 1 डालते हैं, उससे आसान तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को. सो इट विल बिकम f1 स्क्वायर प्लस f of 3 स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ f1. क्लियर है? Now f of 3 given to me as 1, ये ध्यान दो. So that means f1 square plus 1 minus 2 times f1 हो गया 0. That means f of 1 minus 1 whole square goes 0, implies f of 1 is equals to 1. एक रिलेशन अभी तक यहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया कि f of 1 is equals to 1. Got it? अब इसमें कुछ और करते हैं. एज ए सेकेंड स्टेप ऐसा करते हैं, x को डालते हैं 1. ठीक है, या y को 1 डाल देते हैं. x की आदत बनी हुई है थोड़ी, y को 1 डाल देते हैं. सो fx इंटू f1 f of 3 by x इंटू f of 3 is equals to 2 times fx. Correct? Now f1 is 1, f3 is also 1. So it comes out to be fx plus f of 3 by x is equals to 2fx. तो यहां से कंक्लूजन निकला कि fx इक्वल्स टू f of 3 अपॉन x. ये सेकंड रिजल्ट है जो मेरे काम आ सकता है. अंडरस्टूड? fx इक्वल्स टू f of 3 अपॉन x. ऑल राइट, नाउ एक थर्ड रिजल्ट पे आते हैं. अब कुछ और करते हैं. ऐसा करते हैं, y को डालते हैं 3 बाई एक्स. सो fx इंटू एफ ऑफ y हो गया 3 बाई एक्स इज प्लस f of 3 by x into f of x is equals to 2 times f1. x को y को डाला 3 by x is equals to 2 times f of 3.
गॉट इट। अब f of 3 is equals to 1, so that means twice of fx into f of 3 by x is equals to 2. That means fx into f of 3 by x goes 1. एक और रिजल्ट आया, इसको भी अपने पास संभाल के रखते हैं। अब अगर मैं इस वाले रिजल्ट पे और इस वाले रिजल्ट पे साइमल्टेनियसली ध्यान दूं, सो व्हाट यू कैन कंक्लूड, इफ एफ ऑफ 3 बाई एक्स को भी एफ एक्स रिप्लेस कर दूं कि एफ एक्स का होल स्क्वायर 1 है, मीन्स एफ एक्स कैन बी प्लस माइनस 1। गॉट इट। डेफिनेटली इट इज ऑल गोइंग फॉर एवरी एक्स मोर देन 0। अब ये पूरा कंक्लूजन इतना तो पता लग गया कि एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अब मुझे बस इतना जजमेंट करना है कि एफ एक्स 1 है या एफ एक्स माइनस 1। गॉट इट। एक काम करते हैं, एक्स को डालते हैं अंडर रूट ए। गॉट इट। क्या बनेगा, एफ अंडर रूट ए, और यही वाई को डालते हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई समथिंग एज अंडर रूट ए। एफ ऑफ रूट ए, एफ ऑफ रूट ए प्लस एफ ऑफ 3 बाई रूट ए, एफ ऑफ 3 बाई रूट ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई, तो इट विल बिकम एफ ऑफ ए। So it is f square under root a plus f square 3 upon root a is equals to 2 times f of a. Now अगर आप ध्यान दोगे इसकी RHS डेफिनेटली नाउ अगर आप ध्यान दोगे ना, इसकी LHS डेफिनेटली पॉजिटिव है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज कि एफ ऑफ ए हैज टू बी मोर देन 0, और अगर एफ ऑफ ए मोर देन 0 है, इसका मतलब एफ ऑफ ए कितना है, प्लस 1। ठीक है ना, दिस इज व्हाट आई हैव कंक्लूडेड फ्रॉम हियर। सो दैट मीन्स इफ दे आर आस्किंग फॉर एफ ऑफ 97, इट हैज टू बी 1। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, अंडरस्टूड आई थिंक। नाउ सेम एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 26। एक फंक्शन f1 दिया हुआ है, दैट इज मिनिमम मैक्सिमम ऑफ समथिंग, एक f2 दिया हुआ है, एक gx दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है, आंसर निकालना है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज है ना, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ ft, मैक्सिमम ऑफ ft, ये अपने आप में एक डिफरेंट चीज है। पहली बारी में देख के आपको डर ना लगे, इसलिए मैंने फंक्शंस बहुत इजी इजी पकड़े हुए हैं, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, एफ ऑफ टी, तो बहुत टफ फंक्शंस नहीं पकड़े हुए। जेई में इस लेवल पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें इससे भी ज्यादा क्यूबिक के फंक्शंस पकड़े हुए हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पकड़े हुए हैं। ठीक है, आज आप ये समझ जाओगे तो वो आप चुटकियों में टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। Now fx equals to f1x minus twice of f2x। पहले मैं f1 और f2 को समझने की कोशिश करूंगा। देखो f1 क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, f1 में है मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। अगर आप ध्यान दोगे ना, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, गॉट इट। और अगर मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ऐसा है, दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 1। तो f1x क्या बनेगा, f1x विल बी if x lies in -1 to 1, if x lies in -1 to 1, it is minimum of x square and mod x। so x square और mod x से मिनिमम क्या है, x square। गॉट इट। नीचे वाला जो फंक्शन है वो x square है, और अगर x 1 से ग्रेटर और x लेस देन -1, x मोर देन 1 और x लेस देन -1, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है। इन दैट केस एक्स स्क्वायर ही बड़ा है, तो ये भी एक्स स्क्वायर आ गया। करेक्ट है बात। सो दैट मीन्स जो f1x है, f1x, जो f1x है, दैट इज सिंपली एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली अगर मैं f2x पे ध्यान दूंगा, तो f2x क्या है, पहले कह रहे हैं x मोर देन 1 पे मिनिमम, मिनिमम मीन्स व्हाट, mod x, if x is more than 1 or x is less than -1,
और अगर x -1 से छोटा है mod x मीन्स x लाइज इन -1 to 1, then it is maximum of x square mod x. So maximum x square mod x means what? Again mod x. तो that means जो f2x है वो सिंपली क्या हुआ? mod x. तो इसके बिहाफ पे जो मुझे fx दिया हुआ है that is f1x minus 2 times f2x, that will be x square minus 2 mod x. fx is what? x square minus 2 mod x. अब इसके बिहाफ पे मेरे को gx को डिजाइन करना है. अंडरस्टूड? तो अगर gx को बनाना है उसके लिए पहले मुझे gx के ग्राफ को देखना, पहले मुझे fx के ग्राफ को देखना होगा. नाउ fx इज व्हाट? इफ x इज more than 0 then it is x square minus 2x, and if x is less than 0 it is x square plus 2x. So जो fx का ग्राफ आया that is like राइट साइड में ये एंड लेफ्ट साइड में ये. दिस इज योर ग्राफ ऑफ fx. जो fx का ग्राफ आया वो ये ग्राफ है. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 2,0, दिस इज गोइंग टू बी -2 0. तो समवेयर जो है वो 3 यहाँ पे रहा होगा और -3 कुछ यहाँ पे रहा होगा. अंडरस्टूड? वाई एम कंसिडरिंग दिस? क्योंकि gx जो है वो -3 to 3 के बीच में ही बात कर रहे हो. अब बहुत ध्यान से देखना. gx इज नाउ वो कह रहे हैं कि अगर x -3 से लेके 0 में है इंक्लूसिव ऑफ दिस, तो मिनिमम ऑफ ft है where t lies in -3 to x, some next x. अब आप सोचो -3 से जब हम नेक्स्ट x पे मूव करेंगे तो मिनिमम क्या रहेगा? वो जो x पे वैल्यू है वही रहेगी मिनिमम. यस और नो? -3 से नेक्स्ट x पे मूव करने का मतलब मिनिमम वही रहेगा जो x पे वैल्यू है. कब तक? टिल दिस पॉइंट. ये पॉइंट कहां पे आएगा? -1 पे. ये पॉइंट कहां पे रहेगा? 1 पे. सो दैट मीन्स if your x lies in -3 to -1 inclusive of -1, the function will be fx only. और उस केस में fx क्या है? x square plus 2x. Got it? Now अब जब अपना फंक्शन -1 को जंप करेगा whenever your x is more than -1 and less than 0, तो मिनिमम जो फिक्स हो जाएगा ना वो -3 से लेके x के बीच में यहां पे फिक्स हो जाएगा. दैट इज वैल्यू एट -1. और -1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1. दिस. एम आई करेक्ट? नाउ अब जब x 0 से लेके इंक्लूसिव ऑफ 0 को आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे. अब जब x 0 से 3 में है तो वो 0 to x में मैक्सिमम है. अब आप देखो मैक्सिमम जब मैं 0 से आगे बढ़ूंगा, 0 से थोड़ा सा आगे मैक्सिमम कहाँ आएगा? 0 पे. थोड़ा सा और आगे 0 पे. थोड़ा सा और आगे मैक्सिमम कहाँ आएगा? 0 पे. दैट मीन्स जब तक आपका x 0 से लेके से इंक्लूसिव ऑफ 0 से लेके +1 तक होगा, 0 से लेके +1 तक होगा, तो मैक्सिमम आएगा उसका 0 पे. और 0 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? 0. एंड द मोमेंट योर x जम्प्स 1 2 3, तो अब मैक्सिमम x पे रहेगा जो आगे वाला होगा x. दैट इज व्हाट? x स्क्वायर -2x. जो इसकी x स्क्वायर -2x वैल्यू रहेगी फंक्शन की जब x मैक्सिमम होगा इन दैट केस. सो दिस इज योर फंक्शन gx. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, fx plus gx they are asking for x lying between -1 से 0. So if your x lies in -1 से 0, और सिंस देयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन आप इक्वालिटी -1 पे लगाओ, 1 पे लगाओ, 0 पे लगाओ, है ना, ऊपर वाली ब्रांच पे नीचे वाली ब्रांच पे, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. नाउ अगर x -1 से 0 में है देन fx plus gx will be what?
your fx in that case is x square plus 2x and your gx is minus 1. So the answer is x square plus 2x minus 1. x square plus 2x minus 1. This is your correct answer. Well, पूरी एक्सरसाइज के वो सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद में एक बात तो समझ में आ गई है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन को किस लेवल पे स्केल करना है. गॉट इट? मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं. देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको और क्वेश्चंस में भी कोई डाउट हो. अगर ऐसा कुछ है, जस्ट लेट मी नो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन चीजों को बता दें कि सर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस कर दो. आई डेफिनेटली डिस्कस इट इन सम फ्यूचर वीडियोस. फाइन. तो आज आप इससे शुरू करो, इनको खत्म करो, और जो भी कुछ इशू है या प्रॉब्लम है, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कोई क्वेश्चन में एरर है, कोई सोल्यूशन में एरर है, वो भी आप मुझे बताओगे तो आई विल बी मोर देन ग्रेटफुल. फाइन. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.